why you should listen to me. So I have cracked CAT for 4 times. 3 to 4 times I've scored 99% plus. Not only CAT, all other management exams, just to say CET, ZAT, all other things. So I've been in like top 100 of India rankings in most of these exams. Okay. Now I studied in a Marathi medium, and I used to score highest in English when it comes to these entrance exams. So if you have any doubt in you, कि सर इंग्लिश नहीं आता है, इंग्लिश कैसे होगा, leave it aside. That doesn't work. Okay. And the reason for that is knowing English and solving questions are 2 different things. And what I've done anything good in my life is this: how to solve questions. That's it. I don't care about concepts. I don't care about studies. Even if I am unfamiliar with the subject, I will still mark something in it. And that's the whole thing that I'm here to share with you, as to how to mark the answers. Okay. And in general, overall, how to appear to your rest of the mocks, as to what strategies you can use and how can you score better. So let's start with some basics. Okay. All of you are here for NDA entrance. Perfect. So let's revise. How many papers do you have? 2 papers. What are the 2? One is maths, and the second one is GAT, general ability test. Okay, let's come to maths first. How many questions? 120 questions. How many marks? 300 marks total. How much do you want? Who told you that? No, I'm speaking about maths. Maths, you have 300 marks. How much do you want? Tell me. 150. Anything else? What is the cutoff? Like the bare minimum? 75. So how much is that as a percentage of 300? 25%, which is what? 1 in 4 questions. Can you solve 1 in 4? At least 75 marks. And how many? I guess 3 marks per. How many marks per question? 2.5. If you want to score 25 marks or 75 marks, how many questions you will have to solve? 30, which is out of 120. Out of 120, 30 is like 25% only. So always remember how much time you have. 2.5 hours, which is to say 120 plus 30, 150 minutes. 75 minutes, just cut it in half. 75 minutes is you think of clearing your cutoff. The rest 75 minutes, you boost your score. So always keep that in mind. अब मेरे को अगर 75 minutes में 75 score करना है, how many questions will I have to solve? 30 questions I have to solve, which is to say how many minutes per question? Hardly 2.5 minutes per question. Okay. Now think about, so this is what our target is. Okay. I know it's a very ambitious target, but it's achievable. I'll tell you how. Okay. So rest it, keep that at rest here. Come back to exam now. Someone is setting that question paper. Yes. He has some knowledge or some background of setting question paper. Let's just assume that. How do you think the process would be? How would they be setting up the questions? Let's say maths. You have a set syllabus. So they must be looking at, let's say, 1 question from each syllabus and so on. Basically, our topics ek dal do. And that's how they must be coming up with the question bank. Do you think they have a question bank? Mostly no. Because do you see questions getting repeated in India after India? So basically they are creating new questions. What is the process of creating a question? What is the most common topic in maths? Tell me anything. Huh? Calculus, derivatives. Okay? Do you have partial derivatives?
नहीं, only derivative. Okay, let's say derivative पे I want to create a question. कुछ तो मैंने क्रिएट कर दिया, e raised to x sin x cos x dx, करो उसका डेरिवेशन. ठीक है? What do you think the next step is? Once you figured out कि ये क्वेश्चन पूछना है, what is the next step? Finding the correct answer. तो पहले तो करेक्ट आंसर एक ऑप्शन बन गया. Then what is the next step? Correct tricky answers. Basically, they cannot just put up any answer. They will put something that is common to actual answer but slightly different. You know? So this is how the question setter thinks. This is for one question. How many questions he has to set? 120 questions. How much do you think would be easy in that? Easy questions. Mostly, usually the thing is 30, 40, 30. 30% easy, 40% medium difficulty level, 30% difficult. Now here is the thing, and this is why I am here. All these competitive exams, it's not about selecting a question. It's about rejecting a question. Think about it. How much do you want? You want 30 questions, right? How many of you solve 30 questions in actual mock? Do you get all of them right? No. Why? Here is the thing. You solve that mock in whichever manner you solved it. You go back home, you read that mock again, and you realize कि आगे का question तो easy था. मैंने तो पढ़ा ही नहीं है. There are some solvable questions that you missed. Okay? So always remember, when it comes to such exams, competitive exams, the key is to leave the difficult questions, not the picking. अभी जैसा, why are you doing NDA? I'll tell you why. Most of ऐसा होता है, या फिर for that matter science क्यों लिया? ऐसा होता है, सर कॉमर्स नहीं आता, सर बायो नहीं आता, सर आर्ट्स नहीं जाना है. So what are you doing? You are eliminating, and whichever remains you select that. That's the life mantra for most successful people, and even to crack India. जो नहीं आता उसको छोड़ो, जो आता है उसको solve करो. So here is the thing. Next mock you attempt for maths, do this. You have 150 minutes, right? Your target is first 75 minutes. I don't know, it's okay. First 75 minutes, read all the questions. Okay? Do this, it will help. I'll tell you how. Read all the questions. While reading a question, ask yourself 3 questions. Can I solve it? Yes. Can I solve it within 3 minutes? Yes. Solve it immediately. Next set of questions. Can I solve it? Yes. Will it take time? Yes. Sometimes it happens, right? You know how to solve it, it's just that question is lengthy. Mark it, move ahead. Don't spend your time on that question. You come back to it after solving all the easy ones. Third category. Can you solve the question? No. Why the hell are you solving them? Okay? So this is round 1, round 2, round 3. Round 1, 75 minutes. Read all the questions, solve all the easy ones. 30% are easy questions. So out of 120 questions, right? So let's say about 35-40 questions would be easy. इसमें क्या होगा? You will never have that problem कि सर वो तो आता था but मैं वो क्वेश्चन तक गया ही नहीं. And it happens कि आप जब मॉक एनालाइज करते हो तब पता चलता है पहले मैंने इतना टाइम डाल दिया, आगे का तो इजी था. Then you come up with a strategy कि नेक्स्ट टाइम मैं पीछे से चालू करूंगा या करूंगी, है ना? You do that. और फिर पता चलता है सामने वाले इजी थे. ठीक है? So when it comes to competitive exam, it's crime to solve difficult questions. उससे सिर्फ satisfaction मिलता है, मार्क नहीं मिलेगा.
एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को तेरे को 10 मिनट लगता है सॉल्व करने, क्यों कर रहा है? प्रैक्टिस में करना, तेरे को जितना डिफिकल्ट करना है कर, क्या फर्क पड़ता है, एग्जाम में नहीं करने। डिफिकल्ट है ना, पता है ना, अपने को रहता है कीड़ा, ये पता है मेरे को, ये मेरे को सॉल्व करना आता है, सॉल्व करने जाते हैं 10 मिनट लग जाते हैं, फिर आंसर नहीं आता है, मैच नहीं होता ऑप्शन से, देन व्हाट यू थिंक, क्या 10 मिनट डाल दिया है और 2 मिनट डाल दे तो यस नो, और फिर भी आंसर रॉन्ग आता है। बट वो 10 मिनट डाल दिया तो पैनिक आता है, then you start sweating just like I'm sweating right now, not because of that but yeah, समझा ना? So difficult questions are there, that's why they're called speed breaker, pace breaker. They just hit your confidence level, they hit your speed, they hit your accuracy. उसको भी सॉल्व करोगे तो उतना ही मार्क मिलना है, इजी सॉल्व करो तो भी उतना ही मिलना है, तो इजी करो ना, you get it? अब क्वेश्चन है कि सर डिफिकल्ट समझेगा कैसे, सभी डिफिकल्ट लगता है, तो प्रैक्टिस करो, देन देयर इज नो चॉइस। दैट मींस जब सभी डिफिकल्ट लग रहा है मतलब फिर क्या ही क्या है फिर तुम लोगों ने, ठीक है? वो मेरा टॉपिक नहीं है, वो ये लोग करेंगे, क्या पढ़ाना है क्या पढ़ना है वो मैं बोल रहा हूँ कि एक बार जो पढ़ लिया उतना तो इम्प्लीमेंट करो, ठीक है? और पूरा सिलेबस पढ़ना है ऐसा जरूरी भी नहीं है, आई जस्ट टोल्ड यू वी नीड ओनली 50% मार्क्स, 25% to cut off, 25% to boost our score, which means what, half the questions you can leave, आधा लीव कर सकते हो, सोचो, for every 2 questions you have to solve 1, उतना तो कर ही लोगे, हर टॉपिक में कुछ तो इजी आएगा ना, उतना ही टारगेट करना है, and to identify those easy you have to read all questions, वो आगे चल के रिग्रेट नहीं चाहिए, कर लिया होता ये इजी था तो हो जाता, नहीं, read all, solve easy, that's round 1, first 75 minutes, then next 40-45 minutes वो क्वेश्चन जो तुमने सर्कल करके रखे हैं कि तुमको आता है बट टाइम लगने वाला है, so when you read those 120 questions in 75 minutes and you have marked all the easy ones, you must have circled something the way I said कि भाई can you solve it, yes, but will it take time, yes, तुम सबको सर्कल करके रखो, मेक योर ओन, स्टार करो, सर्कल करो, जो भी करना है तुमको, ठीक है? गो बैक टू दोस क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट 45 मिनट्स देन, और फिर उसके बाद टाइम बचा तो उस क्वेश्चन पे जाओ जो पहले 2 कैटेगरी में नहीं आते, which is to say those are either very difficult or you haven't seen them before, they are very unfamiliar to you. So mostly round 3 तक जाता ही नहीं है, round 2 में पेपर मतलब टाइम हो जाता है, but at least you have ensured कि easy सारे solve हो गए and medium कुछ solve हो गए, which is to say 50% question paper you have solved, you are sitting somewhere between all India rank 10 or something, ठीक है? IIT JEE में 30% पे ऑल इंडिया रैंक 100 के नीचे आता है, 30% ऑफ द पेपर। मैंने कैट दिया है 50% पे 99 परसेंटाइल आता है। वो स्कूल के दिन गए जहाँ पे 99 आउट ऑफ 100 चाहिए, इधर वो नहीं है फंडा, ये MCQ है, ये टाइम बाउंड है, इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि वाह क्या इतना डिफिकल्ट सॉल्व कर लिया मैंने। क्या करेगा, मिलेगा तो 2.5 मार्क्स ना, क्या फायदा है? तेरे जगह उसने 3 क्वेश्चन इजी सॉल्व कर लिए, तूने 10 मिनट में डिफिकल्ट किया, सेटिस्फेक्शन बहुत मिला, क्या करना है उसका, ठीक है? सो प्रैक्टिस में और क्लास में भी जब सॉल्व कर रहे हो, फिगर आउट विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन एक्चुअल एग्जाम इफ इट कम्स। कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो प्रैक्टिस में, दिख रहा है ना आपको, एक पूरा पेज लग रहा है सॉल्व करने, सॉल्व करो उसको तब, so that you know this is not you want to solve in actual exam. So your practice is just not कि सर सब आना चाहिए, नहीं, आइडेंटिफाई कि क्या नहीं करना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस होते हैं बाय डिजाइन दैट टेक 4 मिनट्स टू सॉल्व। यार अब कोई क्वेश्चन होगा, वो चाहे फैकल्टी सॉल्व करे आप सॉल्व करो, 4-5 मिनट लगने वाला है उसमें सॉल्व करने को,
बाय डिजाइन इट डिमांड्स दैट एफर्ट। होते हैं ना ऐसे क्वेश्चन जिसमें इक्वेशन लिखना ही पड़ेगा, देयर इज नो शॉर्टकट, तो छोड़ दो ना वो क्वेश्चन। ठीक है, सो फर्स्ट एजेंडा और फर्स्ट लर्निंग, लीव द डिफिकल्ट क्वेश्चंस नो मैटर व्हाट, और उसका प्रैक्टिस बहुत लगता है। व्हेन इज योर एग्जाम? 4 सितंबर। कितना दिन बाकी है? 22 डेज आर देयर। कितने मॉक्स दोगे? 8 तो इधर है, और 2-4 दे दो। अपीयर फॉर एटलीस्ट 10-12 मॉक्स। ठीक है, हर 2 दिन में 1 मॉक। पहले दिन मॉक देने का, अगले दिन उसका एनालिसिस करने का, तुरंत नहीं करने का। वो बहुत रहता है अपने को कि तुरंत देखने का आंसर क्या है वगैरह, नहीं। डू इट नेक्स्ट डे और कीप सम टाइम लैग इन बिटवीन। ठीक है, इतना मॉक दो कि और इंडिया बिकम्स जस्ट अनदर मॉक फॉर यू। So the moment you apply, execute this strategy for next 8 mocks, no matter the difficulty of that paper, you just go and execute it. And it works it has worked miraculous for me. I used to appear for 70-80 mocks for CAT. 6 महीने पहले चालू करता था, बस मॉक देता था, so that जाके बस मेरे को एग्जीक्यूट करना है। I don't care about difficulty level. That's where I started. I don't care about syllabus or difficulty level or anything. These are competitive exams. Syllabus is just 50%. The rest 50% is how you manage that time. And which is to say, are you getting stuck? Which is to say, are you solving difficult questions? So the moment you solve difficult questions, it's gone. The another advantage of that is, if you solve difficult at first, even if you think you can get it right, फिर भी उसको बाद में solve करो। वो है difficult है, you also realize, but यार आपको लग रहा है यार मैंने पहले solve किया है तो शायद हो जाएगा। Still mark it for review, move ahead, जिसको से circle करो, उसको आगे बढ़ो। Because what will happen is, if you start panicking, everything after panic is a complete chaos. उसके बाद का पेपर तो खराब हो गया समझ लो। Once you start sweating, panicking and all, फिर सिली मिस्टेक्स भी करोगे, जो आता है वो भी भूल जाओगे, ऐसा वैसा सब होगा। बट ऑन द अदर हैंड पैनिक हमेशा आएगा। इफ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट, आपको हमेशा पेपर में पैनिक आएगा। सो पैनिक इज इनएविटेबल, वो होना ही होना है। और एट द सेम टाइम वी नो पैनिक के बाद तो सब बर्बाद होना है। सो व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी? पोस्टपोन द पैनिक। अपने पास 150 मिनट्स है ना, पहले 75 मिनट्स में मेरे को पैनिक नहीं चाहिए। विच इज टू से मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन को हाथ ही नहीं लगाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, आई विल रिस्पेक्ट दैट क्वेश्चन। अगर वो इजी है तो तुरंत सॉल्व करूंगा, अदरवाइज बोलूंगा भाई मेरे से नहीं होता, मैं बाद में आता हूँ वापस। ठीक है, रिस्पेक्ट दैट क्वेश्चन, मार्क इट, मूव अहेड। इजी दिख रहा है सॉल्व कर लो, नहीं दिख रहा है मार्क कर लो, आगे बढ़ जाओ। बट अगर उधर अटक गए तो फिर क्या, क्योंकि फिर यू विल स्टार्ट पैनिकिंग। एंड पैनिक मैनेजमेंट विल रिक्वायर एटलीस्ट अनदर 50 मॉक्स कि पैनिक को कैसा मैनेज करना है। वो टाइम है नहीं अपने पास, तो करो मत ना फिर वो सब, इजी सॉल्व कर लो। इजी कर लोगे तो ऑल इंडिया रैंक में आ जाओगे। आई जस्ट एक्सप्लेन दैट टू यू कि इजी क्वेश्चंस ही हो जाता है, इजी टारगेट करो। ठीक है, सो दिस इज फॉर मैथ्स। व्हाट अबाउट नेक्स्ट GAT? हाउ मेनी क्वेश्चंस? 150 questions. How many marks? 600, I guess, right? Plus 4 minus 1/3, whatever it is. Okay, yeah. How much do you need? 150 cutoff, which is how much percentage? 25%. 25%. 1 in 4 question. 30% तो easy होंगे उसमें। इजी भी सॉल्व कर लोगे ना तो कट ऑफ निकल जाएगा। सेम स्ट्रेटेजी। ऐसा तो है नहीं कि इज देयर एनी सेक्शनल कट ऑफ कि इंग्लिश में इतना स्कोर आना चाहिए, ये ऐसा कुछ? व्हाई डू यू केयर देन? अपने को पूरे पेपर में कितने सॉल्व करना है? 25% ना, तो अराउंड 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 40 हो जाएंगे 150 से?
उतना तो कर ही लोगे, अब तक प्रिपरेशन किया है तो उतना तो कर ही लोगे। तो सेम स्ट्रेटेजी हियर अगेन, एक सेक्शन उठाओ, उस सेक्शन के सारे क्वेश्चन पढ़ो, इजी सारे सॉल्व करो। अभी इसमें आई गेस ग्रामर इंग्लिश वगैरह वो सब भी आता है ना, देयर यू कैन नॉट पिक एंड चूज, जो आ रहा है वो मार्क करो, आगे बढ़ते जाओ। देयर यू डोंट रीड एंड देन कम बैक, नहीं, उसमें बस गो अहेड मार्किंग इट, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। ग्रामर क्वेश्चंस आर लाइक दैट ओनली ना, पर तुमको अगर ग्रामर आता है या तो नहीं आता है, वहां बैठ के याद तो नहीं आएगा ना, टाइम क्यों स्पेंड कर रहे हो? ठीक है, सो ग्रामर क्वेश्चंस आर easier to attempt, not easy to correct. I'm saying easier to attempt. या तो आता है या तो नहीं आता है, टाइम वेस्ट नहीं होता उससे। बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज ऑल्सो देयर आई गेस। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दोज आर इजीएस्ट मार्क, उधर ही पैसेज है, उधर ही आंसर है। यस नो? सो हैव यू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिफोर? 10th तक वगैरह किया होगा, है ना? इवन 12th बोर्ड्स में भी इंग्लिश में आता है शायद, है ना? तो थोड़ा बहुत तो आइडिया है। So again, think about it. How a question setter would set a reading comprehension question? How would a question setter set that question? Reading comprehension. उसने एक पैसेज उठा लिया, ठीक है, he decided कि I have to ask something on this passage. पैसेज छोटा ही होता है तुम लोगों का, ज्यादा बड़ा नहीं होता। Then he goes back to thinking कि यार इस पे मेरे को 4 क्वेश्चन पूछना है। How do you think he would start? The appropriate title is one. What is the idea behind that question? Let's just come to that question first. What do you mean by appropriate idea of that question? Yeah, collecting the, not exactly, but little to the mark. Yeah. More or less correct. If I ask you to write something tomorrow, तुमको बोला न्यूज़पेपर में आर्टिकल भेज दो, क्यों लिखोगे आप? How will you write it basically first? अगर आपको बोला कल आपको पैसेज लिखना है, why are you writing that passage? कुछ तो आपको कन्वे करना है ना रीडर को, कि मेरा पैसेज पढ़ने के बाद this one idea should get in his mind. उसके लिए ही पैसेज पढ़ते हैं, पैसेज लिखा जाता है, आर्टिकल्स, पैसेज, व्हाटएवर, एनी पीस ऑफ राइटिंग और एनी पीस ऑफ कंटेंट यू सी wherever is because they want to convey one idea out of that. The moment you pick that one idea, the rest of the paragraph or passage becomes easy to read. Okay? Because अभी जैसा philosophy के passages है, I don't know if you have read those. So philosophy passages are generally published in philosophy journals and philosophy journals have a guideline. जो भी आपका मेन आइडिया है और पर्पस ऑफ राइटिंग है, वो या तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्लियर करो या तो लास्ट पैराग्राफ में क्लियर करो, मेंशन इट क्लियर। सो द मोमेंट यू रीड फिलोसॉफी पैसेज, पहला और आखिरी पैराग्राफ एकदम अच्छे से पढ़ो, उसी में कई मेन आइडिया है। पहले में या तो इंट्रोडक्शन में मेन आइडिया होगा या फिर कंक्लूजन में मेन आइडिया होगा, बिकॉज द मोमेंट यू नो दैट मेन आइडिया, then rest of the whatever passages are supporting details and facts. क्योंकि यूजुअली क्या होता है, आपको कुछ लिखना है, इमेजिन टुमारो कन्हैया कुमार, यू नो हिम, ही वांट्स टू राइट अ पैसेज टुमारो, क्या कंटेंट होगा उसका? ही वुड बैश द गवर्नमेंट लेफ्ट राइट सेंटर, यस नो? हाँ है ना? वो तो वही लिखेगा ना कि यार ये गलत हो रहा है, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, ये गलत है, वो गलत है, राइट? तो वो स्टार्ट कैसा करेगा? गाली देके स्टार्ट करेगा ना, सब देश में गलत चल रहा है, और फिर उसको एक्सपांड करता जाए। यू अंडरस्टैंड? सो एवरी ऑथर हैज अ बायस, हर किसी का बायस होता है, दे हैव सर्टेन एजेंडा, उसी में वो लिखते हैं, नोबडी इज अनबायस्ड। तुमको भी कुछ कर लिखना होगा, आंसर भी लिखते हो तो जो है वो बायस ना, कोई ओपिनियनेटेड आंसर वगैरह लिखते हो वगैरह वगैरह टाइप्स। फैक्चुअल्स आर फाइन, वो तो न्यूज़पेपर आर्टिकल होता है, उसमें दे जस्ट रिपोर्ट फैक्ट्स, इट्स नॉट रीडिंग। रीडिंग इज व्हेन यू आर रीडिंग सम ऑथर,
who has certain agenda at back of his mind, and that's when he has trading. So try to understand those agenda in every piece of reading that you read henceforth. Think about who the author would be. उसने ये क्यों लिखा? वो गुस्से में है, क्यों गुस्से में है? वो खुश है, क्यों खुश है? So keep those things in mind when you are reading comprehension के question solver, because the question setter and the author are two different people. Understand this. Passage किसी और ने लिखा है, क्वेश्चन किसी और ने सेट किया है, right? Who is your friend? No, it's the author. As long as you understand the author, you doesn't matter question क्या सेट हुआ है उस पर, right? So always read very carefully, which is to say एक sentence को feel करो. So the way I used to read it is, अब मेरे को जैसे ही पता चल गया author is happy. Happy है तो क्या beautiful, amazing, marvelous, ऐसा सब words use करेगा ना, कुछ positive connotations के word use करेगा. That's when you know author is happy. So I also become happy. और फिर मैं पढ़ता हूँ, अच्छा ऐसा, wow, great, nice. अब वो sad है author, तो कुछ तो डिमीनिंग चीजें लिखेगा, रूड चीजें लिखेगा, सैडिस्टिक चीजें लिखेगा ना, मैं भी रोता हूँ. Oh shit, what happened? Oh my god. You know, तो start feeling that. और ये आगे भी काम में आएगा. This is how you read people. कोई भी आपसे आके बात करता है, you know उसका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो पहले ही पता चल जाता है कि ये कुछ तो प्रॉब्लम बताने वाला है. Then it becomes easy कि भाई पता है, पॉइंट पे प्रॉब्लम बता क्या है. You know, because this is how even they would look at you when they prepare you for your further careers. ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो. So the next time whatever you read, not only for mocks but anything that you read, think about agenda. वो सब करोगे ना, तो फिर ये मेन टाइटल, मेन आइडिया, these are cake walks then. क्योंकि एक सेंटेंस होगा जो मेन आइडिया होगा, बाकी सब सपोर्टिंग डिटेल्स है. उस मेन आइडिया को प्रूव करने के लिए बाकी सब चीजें वो बोलता है. अब कोई भी आर्गुमेंट जो रहता है सिर्फ एक सेंटेंस पे तो खत्म नहीं करते ना. यू नो, डीमोनेटाइजेशन वाज बैड, ठीक है, इतना बोल के खत्म करेगा क्या कोई भी? उस पे 4 चीजें लिखेगा ना, उसकी वजह से ये हुआ, देखो ये इसने गलत किया, उसने गलत किया, उसकी वजह से ये इफेक्ट हुआ, इकोनॉमी इफेक्ट हुआ. ऑल दीज आर सपोर्टिंग डिटेल्स. मेन आइडिया डीमोनेटाइजेशन होता है. सो when it comes to reading comprehension, main idea, supporting details, that's the whole point. Philosophy passage है तो और भी easy, main idea first हो गया तो last होगा, बाकी इसमें you have to figure out क्यों लिखा है author ने ये सब, what is that one line that he wants to convey to us, उसके लिए उसने इतना सब context create किया. ठीक है, so reading comprehension is there. What about next? And okay, so question setter usually set the questions, answers in one of those categories. Okay, B-A-N-E. Those who cannot read it, it's B-A-N-E. B means broad, A is alien, N is narrow, E is extreme. Okay, so what does it mean? Broad. Passage is speaking about women empowerment. Passage is speaking about, let's say, girl-child education. The option is speaking about women empowerment in total. So it's broad. Passage अपना सिर्फ women girl education पे लिखा हुआ है, but जब क्वेश्चन सेटर ऑप्शन सेट करेगा तो उस आइडिया को ब्रॉड कर देगा, वो women empowerment से उसको कनेक्ट कर देगा और वैसा ऑप्शन डालेगा. अब आपको लगेगा दोनों तो सेम ही है, that's when you get wrong. ठीक है, so that's broad. What about alien? Alien is basically passage is about Maharashtra, option is speaking about Kerala. You know, इतना easy नहीं होगा वो identify करना, but you get the point. So basically, the whole passage is about. I was reading one passage. The whole passage was about existence of God, and the option was about कि God exists and these are the forms in which He exists. So I know कि भाई passage पूरा ये बोल रहा है कि है कि नहीं, option बोल रहा है और ऐसा है. So now I know it's an alien option. It's not connected to what is written in the passage. ठीक है. Next is narrow.
Narrow is basically the opposite of broad. Basically, the passage is about women empowerment. Option speaks about girl child education. So उसने स्कोप नैरो कर दिया ऑप्शन का. पैसेज इतना बड़ा, सब बातें बातें कर रहा है, ऑप्शन इतना सब छोटा सा बात कर. ठीक है. And then there is extreme. Extreme are very easy to identify. Most of the passages will not be extreme. Okay, both extreme passages generally नहीं आते. Passages mostly are little bit neutral. So options में जहाँ पे लिखा है always, never, such kind of words. Those are extreme words. Always मतलब यार हमेशा ऐसा ही होता है. Never मतलब यार ये कभी नहीं होता है. ऐसा real life में mostly कभी नहीं होता है. Real life is always in between. Some gray area is there. That's where we play all of time. So extreme are always easy to identify. If you are looking at an option which has word like always or never, mostly that is your answer. Okay? So BANE, remember this concept. I'll share one PDF document with you, which will elaborate in detail. I'll share it with you all. Okay? So this is about reading comprehension, easy marks. Okay? And why I am telling you this is easy? What is the next bit in English then? Vocab. Vocab कितना ही कर लोगे आप? कितना एज है आप लोगों का? 17-18. जो 18 साल में इंग्लिश नहीं आई 2 महीने में आएगी? कभी नहीं आएगी. वो इंग्लिश का वोकैब तो छोड़ ही देने का. आ गया, बैठ गया, तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं तो गया. बट वोकैब पे कभी प्रिपरेशन नहीं करने का. पीपल से कि सर 5000 वर्ड का लिस्ट मिला, ये पढ़ लेता हूँ. क्या पढ़ लेता हूँ? एक दिन में 5 या 6 वर्ड पढ़ेगा, 1000 दिन लगेंगे. 3 साल का वर्ड ही पढ़ते बैठेगा. ठीक है. तो वोकैब इज अ ट्रैप. वो या तो आता है या तो नहीं आता. तो वोकैब को बाय फोर्स इंप्रूव मत करो. जितना पढ़ने में आ रहा है उतने में जितना इंप्रूव हो गया. We don't want to be expert, right? No, बस एग्जाम क्लियर करना है ना, एक्सपर्ट थोड़ी बनना है. So vocab को ध्यान में दे देने. And then you have like a sentence correction. So grammar, which one is wrong part or something. Spot the error. Grammar में सिर्फ 7 तरह के errors है. Only 7 types of errors. और वो 7 एरर का एक यूट्यूब पे वीडियो सीरीज है. आई विल शेयर दैट. वो वीडियो सीरीज देख लो. स्पॉट एनी एनी एरर यू कैन स्पॉट इन द वर्ल्ड. उसमें एक तरह का एरर है तो इडियम्स एंड फ्रेजेस. वो डिफिकल्ट है सिर्फ वो स्पॉट करना. इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इज एन इडियम व्हिच इज टू से इट्स रेनिंग हेवीली. किसको पता इट्स रेनिंग कैट एंड डॉग्स मतलब रेनिंग हेवीली होता है. वो इडियम्स 1000 का लिस्ट है, वो थोड़ी पढ़ते बैठेंगे उसके लिए. ठीक है. तो ऐसे सब चीजें वो या तो आता है या तो नहीं आता है. वो एक था आई विल नॉट रिटर्न योर मनी टिल द हेल फ्रीजेस ओवर. नाउ हेल बाय डेफिनेशन इज वेरी हॉट प्लेस. एंड टिल द हेल फ्रीजेस ओवर इज बेसिकली जब तक वो ठंडा नहीं हो जाएगा तब तक मैं पैसा नहीं दूंगा. इट इज इम्पॉसिबल. और उस पे ऑप्शन था टिल द हेल फ्रीजेस ओवर, हेल फ्रीजेस अप, हेल फ्रीजेस ऑन. अब वो कैसा पता ओवर है, आप है, ऑन है? ईडीएम है. ईडीएम में नॉर्मल ग्रामर रूल्स डोंट अप्लाई. तो ये अभी नहीं याद आने वाला टाइम तक, तो छोड़ दो ना. डोंट ब्रेक योर हेड अराउंड इट. ठीक है. सो ईडीएम्स वगैरह छोड़ दो. देयर आर अदर 6 टाइप्स ऑफ एरर्स. मॉडिफायर एरर, सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट एरर, वो सब है. सो एक वीडियो सीरीज देख लो. दैट वीडियो सीरीज बेसिकली अ टीचर इज टीचिंग अ स्टूडेंट. तो इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ टीचिंग, क्योंकि जो डाउट तुमको आता है वही वो बच्चे को आता है, और वो पूछता है डाउट और वो टीचर सॉल्व करती है. तो इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड काइंड ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. ठीक है. व्हाट एल्स यू हैव दैट सेंटेंस रीअरेंजिंग रहता है. जस्ट डू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. एक बार रीडिंग आपका जम गया ना तो ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी अपने आप आ जाएगा. जब आप रीडिंग ही इतना कर लेते हो कि वो जम जाता है.
So basically don't burn extra hours on vocab, idioms and other stuff. Learn only grammar and reading comprehension. इतना दो करो, sorted है आपका English. ठीक है, उससे ज्यादा करो मत. What next? What do you have next? Science. So you have set syllabus for that, I guess, right? उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं या फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स वगैरह? तो ठीक है, that's where the this thing comes, which is to say practice things come. बाकी तो वही है, या तो आपको आता है या तो नहीं आता है. टाइम पे अचानक तो याद आएगा नहीं कुछ. यूजुअली ऐसा हो जाता है कि यू आर कंफ्यूज बिटवीन टू ऑप्शंस. मोस्ट ऑफ द टाइम आते रहता है, बट वो अभी ऑप्शन ऐसा क्लोज है तो कांट हेल्प इट, बिकॉज अल्टीमेटली they demand you to know such things, right? You cannot derive it in the class. मैथ्स जैसा नहीं है उसमें, यदि कुछ तो करके डिराइव कर ले तो शायद आ जाए आंसर. So again, science is very easy. Either you know the answer or you don't know the answer. The whole point I am saying is it's fine to not know the answer, but it's crime to spending on that question more than it requires of your time. ठीक है, 30-40 क्वेश्चन आराम से सॉल्व होता है, तो इजी है उसमें. साइंस के 5-6 इजी होंगे ना. कौन सा इंग्लिश तो पूरा सेक्शन जम जाएगा अगर आप ये ग्रामर का वो कर लो और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लो, वो स्कोर बूस्ट कर देगा आपका. ठीक है, और बाकी इसमें बेयर मिनिमम जस्ट सॉल्व. व्हाट एल्स डू यू हैव आफ्टर साइंस? सोशल साइंस, इट्स सेम एज साइंस. मतलब इधर यू नो और यू डोंट नो. बेसिकली टाइम पे डिराइव तो होगा नहीं, तो उसका प्रैक्टिस तो यही है कि पढ़ते रहो एंड डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू नाउ. 10 दिन पे एग्जाम है, तो नया पढ़ोगे तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा. तो नया कुछ पढ़ने का नहीं. अब जितना आता है उतने पे एग्जाम क्रैक हो जाएगी, उसको ही ब्रश अप करते रहो. डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू. वो कुछ स्टडी भी करना है तो डोंट रीड, वो यूट्यूब पे डालो और पढ़ लो. आई मीन पढ़ लो एज इन वीडियो देख लो. Because if you start, because audio visual will grab, I mean it will help you remember more than just visual way of communication. ठीक है, तो पहले कर सकते थे, 1 साल पहले पढ़ के सब सॉल्व, मतलब you could have just remembered everything. अभी नहीं होगा. So अभी जो भी टॉपिक नहीं आ रहा है, ऐसा मत बोलो कि कुछ भी नहीं आ रहा है. जो 2-4 टॉपिक नहीं जमते हैं ना, जो आप मॉक एनालाइज करते हो, पता चलता है ये टॉपिक का क्वेश्चन नहीं जमा अपने को, उतना ही टॉपिक यूट्यूब पे डालो, उतना एक वीडियो देख लो एंड यू आर डन. ठीक है, सो ऑल सच थिंग्स. व्हाट एल्स डू यू हैव? करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स में अगेन दोज आर इजीएस्ट, सो ऑलवेज स्टार्ट विथ करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स ऐसा होता है कि again it's of that category where you either know or you don't know. but साइंस में थोड़ा याद आ सकता है, जीके में कुछ भी कर लो याद नहीं आएगा. जीके इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, और जीके में टाइम भी स्पेंड नहीं करने का. सो इफ यू हैव स्पेंड नो मोर देन 5 मिनट्स ऑन जीके. वो एक बार सेक्शन हाथ में लो, सारे क्वेश्चन पढ़ लो, जो सॉल्व हो रहे कर लो, बाकी छोड़ दो. डोंट इवन कम बैक टू दैट सेक्शन. नो पॉइंट स्पेंडिंग योर टाइम. अगर वो फर्स्ट टाइम नहीं जमा, सेकंड टाइम भी नहीं जमने वाला. ठीक है, सो यू बेटर वरी अबाउट अदर सेक्शंस. साइंस, सोशल साइंस, शायद उसमें कुछ याद तो आ जाए, तो पढ़ा हुआ रहता है. जीके में स्काई इज द लिमिट, और जीके में स्टैटिक कभी नहीं करने का. आई मीन प्रिपरेशन में स्टैटिक कभी मत पढ़ो. स्टैटिक इज ह्यूज. कितना पढ़ लोगे स्टैटिक जीके? ऑलवेज लुक फॉर करंट अफेयर्स. तो रोज का हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स? बाय द वे पीडीएफ आता है, वीडियोस आता है, कौन देता है? हाँ, यूट्यूब पे मिलता है. हाँ ठीक है, तो मंथली की जगह डेली कर, डेली के भी वीडियोस आते हैं. सो देयर इज एन एग्जाम कॉल्ड IBPS PO वगैरह, बैंकिंग का एग्जाम होता है. दे ऑल्सो हैव करंट अफेयर्स. उसमें डेली वीडियोस डालते हैं. उनके जो पर्टिकुलर चैनल्स है IBPS PO प्रेप वाले, दे पुट अप डेली वीडियोस ऑन करंट अफेयर्स. 10-15 मिनट्स ही है. एक साथ 1 महीने का देखोगे ना, तो गुड लक रिमेम्बरिंग ऑल दैट, क्योंकि अटेंशन स्पैन 9 सेकंड से ऊपर नहीं है इंसान का. IIM में हमारे इधर स्टडी हुआ था, IIM के बच्चों का अटेंशन स्पैन कितना है?
9 seconds. तुम लोगों का कितने ही हो. So 1 महीने का मत करो. जस्ट फोकस ऑन डेली. खाना खाते समय रोज मान लो 15 मिनट का क्लिप देखते बैठो. खाना खाते खाते देख लेने का हो गया, उतना करंट अफेयर आपका हो गया. ठीक है. सो करंट अफेयर्स इज दैट. व्हाट एल्स? आई गेस दिस इज प्रीटी मच इट, राइट? सो स्टार्ट विथ करंट अफेयर्स. ओके, देन गो टू, देन यू हैव साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड ये 3 है ना. देन गो टू इंग्लिश. स्टार्ट विथ जीके, go to English, and then you decide between science and social science alternate जो आपको करना है. ठीक है. Why? GK में either you know or you don't know. याद करके आएगा नहीं, उसको better be done with it at first. और उसमें पैनिक नहीं होगा. GK में कभी पैनिक नहीं होता है. वो नहीं आता है तो अपने को भी पता है वो नहीं आता है. पैनिक कहाँ पे होता है? जब अपन स्पेंड टाइम और फिर भी आंसर नहीं आता है. GK में there is no scope to spend time. आप बैठ के याद थोड़ी ना करोगे. याद आ जाए, नहीं होता. सो ऑलवेज स्टार्ट विथ जीके, देन गो टू इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश में आंसर्स आर देयर इन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ. तो उसी में से कुछ तो गलत है या उसी में से कोई ऑप्शन सही है. इफ यू आर सॉल्विंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो गो टू इंग्लिश. इंग्लिश में टारगेट इज टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस. ठीक है. एक बार ग्रामर हो गया आपका प्रैक्टिस, तो और स्पॉट द एरर का उस पर प्रैक्टिस हो जाएगा. देन इडियम्स वगैरह वो सब छोड़ देना. देन यू हैव सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो सिर्फ आरसी है वो क्या आपका पार्ट है ना. वो या तो आता है या तो नहीं आता. वो क्या ऐसा है ना कि यार मतलब स्काई इज द लिमिट. आई एम टेलिंग यू ना. हमारा जो वोकैब का आई मीन वर्बल एबिलिटी का जो बुक रहता था ना कैट प्रिपरेशन का, इट यूज्ड टू स्टार्ट विद दोस 5000 वर्ड्स. और वो आज भी बच्चे, में सुबह ही एक जगह कैट का लेक्चर मिला था, आज भी बच्चे वही पढ़ रहे हैं. Whereas I know कि it doesn't help. Those questions are there just to give you a sense. First of all, those are difficult questions. Second of all, they are there just to slow you down. तो यार तुम उस पे जाओगे, सोचोगे, वो एनालॉजी देखोगे क्या है, फिर उसके बेस पे ऑप्शन पढ़ोगे, उसमें से 3 में से 2 ऑप्शन के तो आपको मीनिंग ही नहीं पता होंगे, तो कई मार्क करोगे. अब नहीं पता ना, तो डोंट ब्रेक योर हेड ओवर. लीव इट. You can leave 50% question paper, no? We just established that. Either you can leave 75% of question paper, 25% ही mark करना है ना. तो 75% you can leave. छोड़ दो ना सारे एंटोनिम सिनोनिम. एक आधा आ गया तो आ गया, नहीं आया तो वैसे भी नहीं आना था, वो आ गया तो बोनस है. ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट वोकैब बेस्ड क्वेश्चन. दे आर लीस्ट ऑफ योर वरीज, ट्रस्ट मी. वो पिछले 18 साल में इंग्लिश सुधरी नहीं है, 10 दिन में नहीं सुधरने वाली है. मैथ्स में नहीं रहता है वैसा. मैथ्स में मान लो डेरिवेटिव्स, 1 महीना सिर्फ डेरिवेटिव्स करने को बोलूं मैं तेरे को, नेक्स्ट मंथ यू विल बी एक्सपर्ट. कैन आई से दैट फॉर इंग्लिश? 1 महीना सिर्फ इंग्लिश पढ़ती, नेक्स्ट महीना तो एक्सपर्ट बनेगा क्या? नहीं होता है. तो इंग्लिश प्रिपरेशन इज नॉट लाइक दैट. इंग्लिश प्रिपरेशन इज कंटिन्यूअस. रोज थोड़ा 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 करते जाओ. That's how you prepare. Maths is the other. वो 3 महीने में भी मैथ्स क्रैक हो जाएगा. अगर एक बार तुम लोगों ने 11th 12th का ठीक से पढ़ा हुआ है पहले, तो 3 महीने में पूरा रिवाइज होके मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा. But that's not the case with the other exams. So, other sections. तो उसका vocab, basically all the knowledge-based question that demands you to remember something and mark based on that, are yes or no questions. Can you solve it? Yes, solve it. Can you solve it? No, नहीं हो रहा है, छोड़ दो. वो तब नहीं हुआ ना तो 5 मिनट स्पेंड करके भी नहीं होने वाला. So don't spend your time. Rather solve easy question, some other question in that time. ठीक है. So all these things are, to be very honest, these are very easy to understand. Okay, if I tell you कि बहुत सब easy और medium question solve करो और सारे difficult question छोड़ दो, सुनने में बहुत अच्छा लगता है. लगता भी है क्या ये तो कितना इजी है, अपने को बस 25% तो लाना है, 75% छोड़ देंगे,
and still you will not score, trust me, because this is not an overnight effort. ये आपको 2-3 मॉक में करना पड़ेगा इसको. Share those scores with him and other faculties here. Discuss with them कि सर कहाँ गलत जा रहे हैं आपको. और अभी आपका जो कि ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन में यूजुअली वी गेट टू नो कि एक क्वेश्चन पे कितना टाइम स्पेंड किया, तो उस पे हम बता सकते हैं कि भाई तूने क्यों इस पे इतना स्पेंड किया, when you know you cannot answer it. But here you are the best judge. It becomes even more difficult for us कि आपको बताए कैसे. So you know which question you spent most of your time on. Then think about it. Was it worth it? Why did I spend so much time on it? That's how you analyze the mock. ठीक है? And the next way of, the next thing, next step of analysis is see whether the question selection was right. Okay? So do we have a better marker? So I'll just have a marker. Yeah, tell me. Last 5 minutes. I usually used to do that. मैं पहले पूरा फोकस से क्वेश्चन पेपर क्रैक करता था. एक बार मेरे सारे आंसर आ गए, फिर लास्ट के 5-10 मिनट्स में बस एक के बाद एक मार्क करते रहो. हाँ, पहले तो बबल करना ना. हाँ, ऑब्वियसली कुछ भी ना राइट है उससे कुछ तो राइट है. बबल ही नहीं करोगे तो मतलब. सो गिव दैट प्रायोरिटी. दैट्स व्हाई आई सेड कि दिस इज इजियर सेड देन डन. ये जो मैं आपको टाइम बता रहा हूँ ना कि फर्स्ट 75 मिनट्स ट्राई टू क्लियर कट ऑफ, नेक्स्ट 40-45 मिनट्स, सो यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट. कभी कभी क्या होगा पता है क्या? You might spend 100 minutes just to read all the questions and solve all the easy ones. It might happen. But then you have to reduce your time in round 2. कि जो सर्कल करके क्वेश्चन रखा है ना, फिर उस पर कम टाइम स्पेंड करो. But spare some time in the end for bubbling. Yeah, whatever, जो भी आपको बोलना है. But I used to do that. हमारे 1-2 एग्जाम ऑफलाइन होते थे. My strategy would be simple. पहले मैं पूरे फोकस से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लूंगा, क्वेश्चन पेपर पे सब मार्क कर लूंगा, और उसके बाद आखिरी के 5 मिनट 10 मिनट में आई वुड जस्ट गो ऑन बबल. और उसमें थोड़ा इजी भी होता है, एक के बाद एक बबल करो ना तो ट्रांजिशन टाइम भी कम हो जाता है. एक एक क्वेश्चन बबल करते जाओगे तो इधर जाओ फिर उधर जाओ फिर इधर जाओ फिर उधर जाओ फिर इधर जाओ. ठीक है. सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप मॉक एनालिसिस वगैरह करोगे, so one is sweet spot, another one is well left, then you have best sitters, and then you have wrong selection. ठीक है. So these are the sections where you should target. Okay, so what does it mean? What is sweet spot? Sweet spot is basically question was easy, you also solved it and got it correct. So it was a win-win. Question भी easy था, तुमने भी solve किया, time भी कम लगा, आंसर भी correct आ गया. Then well left. Question difficult था, तुमने solve नहीं किया. So it was a good decision. Bouncer आया, leave कर दिया. Good decision. Right? This is where you should not be. और ये एग्जाम के समय नहीं पता चलेगा, ये एग्जाम के एनालिसिस में पता चलेगा. ये एग्जाम के समय यू कैन स्पॉट क्या डिफिकल्ट है वो छोड़ दो, क्या इजी है सॉल्व कर लो. ये एनालिसिस करते समय ये देखो, were there any missed sitters, which is to say I was mentioning earlier कि एक क्वेश्चन जो इजी था वो मैंने सॉल्व नहीं किया. Then figure out the reason कि why couldn't you solve that. मे बी आप वहां तक पहुंचे ही नहीं, या मे बी उसको पढ़ा ही नहीं, या मे बी यू थॉट इट वाज डिफिकल्ट बट यू कुडंट, बट एक्चुअली इट वाज इजी. थिंक अबाउट द रीजंस एज टू व्हाई यू लेफ्ट द सिटर्स क्वेश्चन.
Okay, and then you have wrong selection. Wrong selection is, so mostly this is, if you are struggling with the mocks, this is the struggling section कि सर सॉल्व तो कर रहा हूँ बट गलत हो रहा है, तो बॉस वो डिफिकल्ट था ना, तो क्यों सॉल्व कर. सो स्टे अवे फ्रॉम दिस. डिफिकल्ट लग रहा है ना, उधर ही पेन छोड़ दो, नहीं करना है, आगे बढ़ो. डोंट इवन स्टार्ट टू अटेम्प्ट. अपना उल्टा होता है कि शायद आ जाएगा, कर तो लेते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू डू दैट कि आ जाएगा यार, सॉल्व करना तो चालू कर दूं मैं, और फिर रियलाइज होता है कि साला ये तो डिफिकल्ट था, टाइम भी खा गया, निगेटिव मार्क भी ले गया, उस टाइम में 2 इजी हो सकते थे वो भी खा गया. ठीक है, सो स्टे अवे फ्रॉम दिस. दिस इज वेयर यू हैव टू बी. द मोमेंट यू फिगर आउट कि ये डिफिकल्ट है, टाइम लगेगा, व्हाटएवर मे बी द रीजन. समटाइम्स दिस क्वेश्चन इज ह्यूज, 5-6 लाइन का क्वेश्चन, छोड़ दो ना, तो समझने को 4 मिनट जाएंगे, सॉल्व करने को तो टाइम अलग से लगेगा जो लगेगा. राउंड करो, सर्कल करो, आगे बढ़ो. इजी क्वेश्चन सॉल्व करो ना, आगे शायद कोई इजी हो. ठीक है, तो figure out, and it's very subjective also. It's based on your preparation also. Something that may be easy for me may not be easy for you. Maybe because I have practiced enough about that. तो मेरे को थोड़ा easy लगता है, आपने नहीं किया हो. This is क्या होता है अभी. I mean, it's not a good analogy to give at this point of time, but चाइनीज भी बहुत सारे गोल्ड मेडल जीतता है, और अमेरिका भी जीतता है. फर्क क्या है दोनों में? अमेरिका नर्चर्स द टैलेंट. दे सी कि हाँ भाई इसमें पोटेंशियल है, तो इसको प्रिपरेशन कराओ, गिव हिम दैट एनवायरनमेंट, गिव हिम एवरी पीस ऑफ इक्विपमेंट पॉसिबल, उसको नर्चर करो, एंड ही विल एंश्योर दैट ही विल गेट यू गोल्ड और सम मेडल. व्हाट इज चाइनीज वे ऑफ विनिंग? तू बैडमिंटन में गोल्ड लाएगा, सब काम धंधा छोड़, तेरे को पैसा मिलेगा, your family will be taken care of 16 hours a day, you just come and play here. Brute force. So either you are born talented or you achieve a brute force. कौन born talented है इधर? कोई किसी को लगता है? लगता तो इधर नहीं होता, बट ठीक है. हाँ, वो कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, तो अपन क्या करते हैं? ब्रूट फोर्स. 15, 16, 20 घंटे दिन में बस यही करना है. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 8, 10, 15 मॉक्स दो अगले 22 दिनों में. इतना मॉक दो कि वो इंडिया विल बी जस्ट अनदर मॉक. हाँ, go to the circled questions. हाँ हाँ, so at least you have ensured cut off now ना. अब टाइम ले रहे हैं, see easy सारे मार्क हो गए, then you have some circled questions and some skipped question जो कि सर्कल भी नहीं थे, you knew कि तुमको सॉल्व नहीं होना है. So now you have 2 types of questions, medium and difficult. Circled ones are medium, go to medium. अब मीडियम में भी एक डेरिवेटिव का होगा, एक इंटीग्रेशन का होगा, एक मैट्रिसेस पे होगा, तो देख लो तुम्हारा क्या कंफर्टेबल है, उसमें भी पिक एंड चूज कर लो कि शायद मैट्रिसेस सॉल्व हो जाए, डेरिवेटिव थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो मैट्रिसेस सॉल्व कर. ठीक है, सो राउंड 1 इज ऑलवेज both the paper or both the sections, all the sections. Round 1 solve all easy, round 2 solve all the medium. मोस्टली राउंड 3 तक जाता ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता है, और राउंड 2 में ही पूरा टाइम निकल जाता है. राउंड 3 इज बेसिकली कि अब सारे सर्कल वाले भी हो गए, सारे इजी वाले भी हो गए, अब जो बचे हुए हैं आर बेसिकली दोज दैट आर रियली डिफिकल्ट, तो वो तो वैसे ही सॉल्व नहीं होने थे, तो राउंड 3 में भी नहीं होंगे. बट मोस्टली यू डोंट गेट टाइम फॉर राउंड 3. राउंड 1 राउंड 2 कर लो ना, तो आराम से 50-60% क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाता है. एंड उसमें अगर आप 80-85% भी एक्यूरेसी पकड़ लो, एंड बिकॉज उसमें एक्यूरेसी भी ज्यादा होता है, बिकॉज यू पिक दैट क्वेश्चन, राइट? You pick that question, you have some reasoning, and the reasoning is basically you can solve it. That's why you picked it. So accuracy usually is very high. So do that, and your final score is the product of 2.
नंबर ऑफ क्वेश्चंस मल्टीप्लाइड बाय एक्यूरेसी। ठीक है, तो अपने को दोनों पे फोकस करना है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं वो तो अपन ने देख लिया, आधे ही करने हैं अपने, ज्यादा तो करने नहीं है। तो अटेम्प्ट तो वो हो गया, एक्यूरेसी कैसा करोगे? अब एक्यूरेसी सिर्फ वही क्वेश्चन से आएगा जो सॉल्व हो पाएगा, और जो सॉल्व हो पाएगा वो इजी है, तो इजी सॉल्व करो। सो एक्यूरेसी automatically if you solve easy, accuracy is very high, and attempt, because you have solved all the easy questions, so attempt is very high, overall your score is very high then. ठीक है, so the next time you appear for mock, do it in rounds, number 1. Number 2, once the mock is done, create this chart. ऐसा actual create नहीं करो, दिमाग में सोचो हर क्वेश्चन के बारे में। Was it a sweet spot? Was it a miss sitter? Was that a wrong selection? Think about it. तो वो एनालिसिस हो गया। फिर सोचो कि यार ये मिस सिटर था तो मैंने क्यों नहीं सॉल्व किया, ये तो इजी था, why didn't I solve it? Then figure out the reasons and don't make that mistake again. And then wrong selection, कि भाई ये मैंने क्यों सॉल्व किया, इसको तो छोड़ना चाहिए था, ये तो इतना डिफिकल्ट है। तो think about it कि why did you solve that question? Most of the time it would be familiarity, ये देखा हुआ सा लग रहा है, पहले किया हुआ सा लग रहा है, शायद हो जाएगा इसलिए सॉल्व किया। डोंट डू दैट इन नेक्स्ट मॉक देन। जब तक गारंटी नहीं है कि ये मेरे को थोड़ा बहुत तो आ जाएगा, मत करो ना सॉल्व। यू डू दी एग्जैक्ट अपोजिट, यू ट्रायल एंड एरर, वहां पे शायद हो जाए, कुछ तो कर लू, शायद आ जाए, नहीं नहीं जम रहा है ना, मूव इट एंड डोंट गेट स्टक। मान लो एक रॉन्ग सिलेक्शन हो भी गया, एक आधा क्वेश्चन आपको लगा इजी है बट सॉल्व करते करते लग रहा है डिफिकल्ट है, there are two options there. One is you say कि यार 5-6 minutes I've already spent, let me spend some 2 minutes more, maybe I'll get it correct. That's one way, but that doesn't work, क्योंकि कोई क्वेश्चन 5-6 मिनट में नहीं आया, वो अगले 2 मिनट में क्या आएगा? So always leave, and trust me that's very difficult to do. बोलना बहुत easy है मेरे को कि आपने 5-6 मिनट एक क्वेश्चन पे डाल दिया, मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं हो रहा है ना, छोड़ते आगे बढ़, वो अपने को जमता ही नहीं है। वी टेक इट ऑन ईगो ना, पैसे नहीं जमा, मतलब 5-6 मिनट डाल दिया। लीव इट इन लाइफ एंड इन मॉक, लर्न टू लीव। छोड़ दो चीजों को, वही के वही छोड़, जाने कुछ नहीं होता, नहीं जमाना, ठीक है, यू स्पेंड 5 मिनट्स, ठीक है, आई विल टेक इट ऑन माय चिल, गलती से हो गया, मे बी नेक्स्ट इजी निकल जाए, वो सॉल्व हो जाए, बट ये तो पता है ना डिफिकल्ट है, 5 मिनट ले लिए ना, और कितना दोगे उसको, मत दो, ठीक है। एंड अगेन इट्स इजियर सेड देन डन, करो पहले, फिर अपन बात करते हैं, ठीक है। हाउ मच टाइम डू यू हैव? If you have any doubts or anything, doubts as in I cannot solve your questions, overall doubts you can ask me, अरे को एक भी नहीं आता है तुम्हारा क्वेश्चन, मुझे डाउट्स पूछ सकते हो कि लाइक इफ यू हैव एनीथिंग अबाउट ओवरऑल स्ट्रेटेजी और शेड्यूल। हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू स्कूल कॉलेजेस, जा रहे हो क्या? सब घर पे ही हो ना, मतलब 12th हो गया ना तुम लोगों का? अच्छा नेक्स्ट ईयर 12th होगा, यू आर अ रिपीटर है? अच्छा हाँ ठीक है, ओके, सो यू हैव मोस्ट, सो अभी आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, क्या करते हो? कॉलेज जाते हो ना? नहीं जाते, सिर्फ एग्जाम को जाते हो? हाँ, बिकॉज आई लिव इन हैदराबाद, वहां पे कंपलसरी जाना पड़ता है, तो क्लैट का एक एग्जाम होता है, पता है तुम लोग? वो तुम जैसे ही एज ग्रुप वाले देते हैं, तुम्हें वहां क्लैट वालों को पढ़ाते, पागल है वो लोग, सुबह 9 से 6 स्कूल वगैरह वो सब करते हैं, ट्यूशन वगैरह करते हैं, और शाम को फिर थोड़ा सा टाइम मिलता है, उसमें क्लैट का प्रिपरेशन करते हैं। मैं बोलता हूँ हमारा महाराष्ट्र अच्छा है, हमारे इधर जाने की जरूरत नहीं है। We don't have any attendance criteria or anything, वो सब मैनेज हो जाता है। इट्स अ ह्यूज एडवांटेज, ये अपने को अभी नहीं समझता है, ये तुम बाहर अब जाओगे ना, बाहर के स्टेट्स वालों से मिलोगे ना, नेक्स्ट फ्यू इयर्स यू वुड अंडरस्टैंड कि वहां कितना रिगरस होता है, उनको जाना ही पड़ता है, दिन भर स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, दे कॉल इट स्कूल, अपने यहाँ पे कॉलेज बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं, व्हाटएवर।
ठीक है, so it's a huge advantage. So I was coming back to the point कि what is your schedule in a day? अभी तो फ्री हो सब लोग, यही करो ना, what else do you have? तो ये एनडीए के बाद क्या करोगे फिर अभी? वो तो नेक्स्ट ईयर होगी. कोई फर्स्ट ईयर का है, कोई सेकंड ईयर का है, ऐसा मतलब कोई 11th का है, कोई 12th का है. अच्छा ठीक है. So which all exam does it overlap with? इसका सिलेबस क्लैट तो बहुत इजी है. इंडिया का मैथ्स सीईटी कवर हो जाता है. हाँ सोशल एंड ऑल. हाँ. क्लैट इज वेरी डिफिकल्ट. क्लैट में सोशल काम नहीं. क्लैट में यू नीड, क्लैट इज वेरी इजी. मैंने इंडिया का तुम लोगों का पेपर देखा था. क्लैट इज डैम इजी. क्लैट इज मैथ्स टिल 10th, इंग्लिश टिल 10th, क्योंकि क्लैट लॉ वाला भी देता है, कॉमर्स वाला भी, आई मीन आर्ट्स वाला भी देता है, कॉमर्स वाला भी देता है, साइंस वाला भी देता है. सो द कॉमन ग्राउंड इज टिल 10th ओनली. तो 10th तक का ही पूछते हैं. सो क्लैट इज वेरी इजी. सो इफ यू आर प्लानिंग टू अपीयर फॉर क्लैट, डू अपीयर फॉर इट. उसमें सिर्फ लीगल है, लीगल पढ़ना पड़ता है. दैट्स द एक्स्ट्रा पोर्शन. अदरवाइज इट्स वेरी इजी टू क्रैक. व्हाट एग्जाम एल्स आर यू प्लानिंग फॉर? कुछ है दिमाग में? ठीक है, अभी तो एनडीए ही करो. व्हाट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया लाइक आफ्टर दिस इंटरव्यू और you go to SSB and all also. So this is just first step, है ना? इसके बाद इंटरव्यू भी है. That's one battle at a time. अब भी तो ये क्रैक. Anything else? CDS. You guys are for CDS क्या? अच्छा. CDS का भी I guess it's a little higher level, but strategy remains the same. Any competitive exam, this is the strategy. The target is to solve all the easy ones. Yeah. How to study legal stuff, because I am studying for that and I don't know what to get, because I don't know the tax or how can I do this? Do you have any friend who is appearing for CLAT? उनको पूछना. What are they preparing? Usually CLAT का अलग से ट्यूशन होता है, क्योंकि CLAT का लॉ जो है ना, there's no defined syllabus in that. CLAT का क्वेश्चन पेपर इज बहुत अलग है. Every question is a passage based question in that. मतलब जीके में भी वो पैसेज देते हैं, 4 क्वेश्चन होता है. मैथ्स में भी पैसेज देते हैं, 4 क्वेश्चन होता है. लीगल में भी वही होता है. तो CLAT मतलब अगर if you are thinking कि इंडिया करोगे तो CLAT हो जाएगा, I guess that's not the right approach. CLAT में लॉ में I guess if I remember correctly they have something called, पहले तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ता है, all the sections and all. फिर उसके बाद IPC तो शायद नहीं पढ़ना पड़ता है, but they have something like torts and then civil law and then criminal law, वो सब वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है. And एक आधा बुक वगैरह देख ले, कोई मिल जाएगा तो, लॉ फॉर CLAT वगैरह. बट that's just the starting point. उसके बाद प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, वो सब के लिए if you are really serious about it, get a tuition. वो अपने से खुद से नहीं होगा वो. You will need some external assistance to crack CLAT. But हम ये SSB actually implement करते हैं, उनके scores काफी हैं, उनके cutoff से वो 450 प्लस होते हैं, 420 प्लस होते हैं. पर cutoff क्लियर करने से हमको मार्क्स भी शायद सेक्शनल कटऑफ क्लियर हो जाए, पर उस वजह से हमारे जो मेन कटऑफ निकलता है पेपर को क्लियर करना मुश्किल है. मेन कटऑफ एज इन द एसएसबी वाला कटऑफ, फाइनल स्कोर वाला कटऑफ भी है. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. हाफ ऑफ द टाइम is your battle to clear cutoff. पहले तो bare minimum वो है, अपने को आधे टाइम में पहले तो cutoff clear करना है. So if it's a 150-minute exam, 75 minutes में solve all the easy questions, read all the questions, ensure cutoff is clear.
Next 75 question is where you 75 minutes is where you boost the score. So कोई भी एग्जाम ले लो, क्लैट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, everything, split it in half. First half clear cut off, second half boost your score. ठीक है, तो उस स्ट्रेटेजी से मॉक दे कि अभी मेरे को 75 मिनट्स में 150 मिनट्स का है ना, मैं 75 मिनट्स में सारे क्वेश्चन पढ़ने वाला हूँ मैथ्स के और इजी सारे सॉल्व कर दूंगा. तो आई विल रीड अ क्वेश्चन, इजी है क्या, हाँ है, तुरंत सॉल्व करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा. मीडियम लेवल लग रहा है, टाइम लगेगा, सर्कल करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा. डिफिकल्ट है, कभी देखा ही नहीं है, पहले स्किप करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा. देन अगेन एक आधा इजी मिलेगा, सॉल्व करूंगा. That's how I'll just go on reading and parallelly solving all the easy ones. ये करेगा ना तो definitely first 75 minutes में you will clear your cutoff, preferably with 25-30 questions, 20-25 questions उसमें हो जाएगा. And then you go back to first question after the 75 minutes, go to all the circled ones और वो solve करना start. तो पहले तूने cutoff clear कर लिया, अब जो भी तू मीडियम डिफिकल्टी लेवल सॉल्व करेगा उससे तेरा स्कोर बूस्ट होगा. एंड बिकॉज यू हैव एंश्योर्ड कि तू डिफिकल्ट नहीं सॉल्व कर रहा है, तेरा एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, तो तेरा स्कोर विल जंप लाइक क्रेजी इन दैट. 80-85% एक्यूरेसी विद, बिकॉज यू आर मैनेजिंग योर टाइम, नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी बढ़ेगा. सो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स गेटिंग इंक्रीज एंड बिकॉज यू आर सॉल्विंग इजी एंड मीडियम, एक्यूरेसी इज गेटिंग इंक्रीज. Combine the two and you are landing at a very safe score. So that's the whole agenda. Okay. Right. That's what I'm saying. Score तो दोनों में करना पड़ेगा ना. This is the combined score, right? Combined score you need 450 or something, 350 or something. तो अगर combined score 350 चाहिए, let's say total number of questions, sorry, 900 marks है ना, 350 चाहिए ना, still just 30%, right? Which is to say 1/3, which is to say you can leave 2/3. Same strategy applies. Overall cutoff भी अगर 350 का है, 900 out of, it's near about 33% only. राइट, 33% मतलब 1/3 हो गया ना. 1/3 ही सॉल्व करना है, इट मींस 2/3 लीव करना है. 2/3 लीव इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू कैन लीव. एवरी 3 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व ओनली 1. 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो. थिंक अबाउट इट. यू कैन सॉल्व, यू कैन लीव ऑल द डिफिकल्ट वंस, यू कैन लीव सम मीडियम क्वेश्चंस आल्सो इफ यू वांट, एंड स्टिल यू विल गेट at 350-400. Okay, so think about it. It's not that difficult. जो स्कोर अपने को चाहिए, यूजुअली पीपल थिंक अबाउट बोर्ड्स टाइप ऑफ स्कोरिंग. 900 का है ना, आई विल रिक्वायर एटलीस्ट 700, 600. नो, 300 चाहिए अपने को, 400 ही चाहिए. 45%. सो फर्स्ट 75 मिनट्स इजी सारे सॉल्व कर लो. नेक्स्ट 75 मिनट्स सारे मीडियम और एक आधा डिफिकल्ट सॉल्व कर लो. कंफर्टेबली एक ही सेक्शन में आपका स्कोर बहुत बूस्ट हो जाएगा मैथ्स में. देन गैट पे जाओ, उसमें जी के पहले सारे सॉल्व कर लो 10 मिनट में. या तो आता है तो मार्क करो, नहीं आता है तो छोड़ दो, डोंट इवन कम बैक टू इट. देन गो टू इंग्लिश, वो सारा पूरा सॉल्व कर लो. एंड देन स्विच बिटवीन साइंस एंड सोशल साइंस, उसमें जो करना है कर लो. ठीक है, व्हाट एल्स? सो अभी 8-9 जो भी मॉक्स है, give them very diligently, appear for them very diligently, try to implement what I said. Trust me, it has helped me and thousands others like me. मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, 4 साल जॉब किया, उसके बाद 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन किया. आई एम मच एल्डर टू यू, मतलब मैं इससे 4 साल बड़ा हूँ. तो अब आपसे तो समझ ही लो कितना बड़ा रहूंगा. तो लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस. मेरा एक ही फंडा था, मेरे को पता चल गया था पहले 2 साल में कि मेरे को कुछ नहीं आता. 2 साल लग गए मेरे को ये फिगर आउट करते करते कि मेरे को कुछ नहीं आता. मैं पहले अपने हवा में रहता था,
खुद ही प्रिपेयर करता था, इसको पता है, खुद ही अपने रूम में 8-8 घंटे बैठ के प्रिपेयर कर रहा हूँ। बुलशिट, वैसा प्रिपरेशन कभी नहीं होता। दिस इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दिस आर नॉट बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड में होता है सेट सिलेबस है, एक ही टेक्स्ट बुक है, उसी को पूरा चार्ट लो, 4 बार उसी को सॉल्व कर लो, स्कोर अच्छा आ जाता है। दिस इज नॉट लाइक दैट। गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट, इट्स रियल वर्ल्ड नाउ। कॉम्पिटिशन इज कट थ्रोट हियर। तो यहाँ पे स्मार्टनेस वर्क्स, not hard work only. And the smart work is knowing what to solve and knowing what to leave. Smart way of dealing it. वो smartness ज्यादा काम करता है on top of your genuine hard work that you have already put in. So सिर्फ hard work से नहीं बनता है, क्योंकि every nerd would have cracked it. अगर सिर्फ पढ़ के ही ये क्रैक होना था तो कोई भी टॉम डिक एंड हैरी दिन के 20 घंटे पढ़ के 2 साल में इंडिया क्रैक कर देता था। होता है क्या ऐसा? नहीं होता है, बिकॉज व्हाट यू स्टडी इज जस्ट 50%. नेक्स्ट 50% इज योर मॉक्स, दोज आर रियली इंपॉर्टेंट, एंड आई जस्ट टोल्ड यू हाउ इंपॉर्टेंट दे आर. ठीक है, ऑनलाइन डाउट है बिकॉज़ ऑफ एग्जाम प्रेशर, जो क्वेश्चन हमें आते थे वो भी रॉन्ग. हाँ, so that's why do you get that pressure? The very reason of that pressure is you started on a very wrong note. If you start with a difficult question, you पहले ही तो time bound है, so that timer is always ticking, so that keeps pushing the pressure. दूसरा प्रेशर अपना खुद का रहता है, फेल हो गया तो मम्मी क्या बोलेंगी, पापा क्या बोलेंगे, घर पे जाके क्या होगा. So ये already 2 pressures are given. Third pressure you build yourself in that mock, which is I start with difficult one. So lower pressure लो फिर. Don't do that. The only thing that you can do is, that's what I said, pressure हमेशा आएगा, which is to say panic हमेशा आएगा. Panic को postpone करो. The more you postpone the panic, because panic के बाद everything is chaos. तो पहले 10 मिनट में पैनिक मत आने दो ना. क्यों डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करो ना बाद में. लीव ऑल द डिफिकल्ट, उससे पैनिक आएगा ना, बाद में कर लो. इजी क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस आएगा, इट्स एंटी पैनिक. उल्टा और अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने. तो वो सब करो, एंड देन इन द एंड, फिर एंड में पैनिक आएगा. द मोमेंट यू स्टार्ट सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड ऑल, तब पैनिक आएगा. बट इट्स फाइन ना. पहला 75, 80, 100 मिनट्स तो अपना सिक्योर हो गया ना. अच्छा, दैट्स द स्ट्रेटेजी. तो वही होता है, एक बार पैनिक आ गया ना तो फिर जो आता है वो भी नहीं आता है. बिकॉज यू ऑलरेडी, आई टोल्ड यू, 2 प्रेशर तो वैसे होते हैं, तीसरा प्रेशर ही होगा. एंड फोर्थ टाइप ऑफ प्रेशर कुड बी एक्सटर्नल. आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, उधर कुछ चल रहा है, फोकस नहीं हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, वो सब होता है. दैट डिपेंड्स ऑन योर लक, आपका सेंटर कैसा है, क्या है. अगेन दैट्स एक्सटर्नल. वो एक्सटर्नल है तो अपने हाथ में तो कुछ है नहीं. व्हाई वरी अबाउट इट? जो अपने हाथ में है वो करो. सो डोंट बिल्ड प्रेशर इन एग्जाम बाय सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चन. दैट्स द. सो if I want you to take away one thing from this session is just solve the easy ones, leave all the difficult ones. That's it. इतना ही अगर आप इस पे, if I spend 1 hour and if you take this only with you at home, it was fruitful session, I would call it. And not only that, you again have to implement that. सिर्फ समझ के कुछ नहीं होगा, उसको implement भी करो. ठीक है. So the next mock you appear, think about it, and it will help. Trust me, it will help. It has helped many like me. It will help you as well. ठीक है. What else? Anything else? No. Anything online? ठीक है. Shall we stop? Okay. So thanks for listening to me. Okay. If you have anything in particular to ask or speak with me, I'll be sitting here outside for next few minutes. You can come there, we can speak. Otherwise, he is always there. Through him, you can always contact me. Okay. I don't stay here, so physical classes won't be possible. Call wall पे कुछ करना है, बात करना है, तो we'll see what we can do. ठीक है. All right then, let's stop here. All the very best for your exam, and do let us know how are you scoring in your mocks and all. Okay, then we can improve upon it.
All right then. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. ओके, गीता ओजस, साक्षी, वैष्णवी, मिलते हैं अपन, ठीक है? Yes, sir. Bye, sir. Thank you. यस, बाय Thank you. Bye, sir. बाय।